that we'll be discussing the accounting concepts. So the first of all, we need to understand what is a business transaction. Business transaction means, like I'll explain it with an example. Suppose we are buying a pen like this. So we go to the market, we buy the pen and we pay the cash. This becomes a business transaction. When some economic value is involved, then it becomes a transaction. सपोजिंग जैसे मैं हिंदी में बताती हूँ, एक ट्रांजैक्शन होता है जैसे हम पेन खरीदने गए मार्केट में, तो हमने पेन लिया और हमने उसके लिए कैश दिया, तो ये जो पूरी चीज़ है इसको हम एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। जैसे एक्सचेंज पेन लिया हमने और कैश दिया, तो इस दोनों चीज़ों की कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, तो वो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाता है। पहला टर्म जो हम समझते हैं वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सो सेकेंड टर्म विच वी कम नाउ इज एन अकाउंट। अब ये अकाउंट क्या है, ये आप जो अकाउंट्स जो पढ़ रहे हैं ये तो एज अ सब्जेक्ट है, बट अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट का मतलब होता है जब भी हम इस ट्रांजैक्शन को, इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, तो वो हमारा अकाउंट्स होता है। लाइक इन एन अकाउंट वी रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन, we classify the business transaction and we summarize the business transaction in terms of maybe journal, ledger, then trial balance and then financial statement. So all this is known as account. So account is like when we are recording a transaction, a business transaction. जैसे पेन खरीदा, कैश दिया, इसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे कि कैश हमारे पास से चला गया और पेन हमारे पास आ गया। सो थर्ड पे आते हैं जो होता है हमारा कैपिटल। ये वर्ड मेनी ऑफ अस हैव बीन यूजिंग इट एट वेरियस फेजेस, बट कैपिटल मीन्स द पर्सन हु इज डूइंग द बिजनेस, ही हैज टू इन्वेस्ट सम मनी इन द बिजनेस। नॉर्मली तो मैं कहूँगी मेरा ही बिजनेस है तो मेरे ही अकाउंट्स है, बट बिजनेस में ये ऐसा नहीं होता। मैं एक सेपरेट एंटाइटी बन जाती हूँ और जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में, तो वो एक सेपरेट बन जाते हैं। तो बिजनेस और मैं सेपरेट होते हैं। तो जो भी चीज़ अगर मैं कैश में अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती हूँ तो वो बिजनेस का कैपिटल हो जाता है, यानी कि वो मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन है जो मैंने बिजनेस में दिया है। सो वो बिजनेस और कैपिटल अलग अलग चीज़ है। मतलब बिजनेस में मैंने पैसा लगाया, वो मेरा कैपिटल बन गया। Like I'll explain it again. Whatever a promoter or a founder of a business is investing in business, that is known as his capital. Capital is different from the person. The person is making the books of the business. He's not making the books for himself. So for the business, this capital or the amount which is contributed by the founder is a kind of a liability which the business owes to the promoter. In case जब business नहीं चलता और it closes down, that capital goes back to the owner or the founder of the business. So for business, it is something which needs to be repaid back in case the business discontinues. So that becomes kind of a liability. Now in this capital, there are if we say it is a sole proprietor firm, a single person owning the business, that it means the person brings in this capital. So we simply call it as a capital. Or if there are kind of a partnership firm, whatever the partners are contributing, it becomes the capital. But when we expand further and we take the case of a company, then in that case, all the people who are contributing capital are known as the shareholders of the company, and that whole capital is then known as an equity capital or a preference capital or some other kind of capital, depending on the terms and conditions between the company and the persons who are contributing the capital. So in broader terms, capital we will be using generally as whatever the owners of the business are bringing into the business. So जो भी कुछ contribution owners of business करते हैं, जो उसमें पैसा लगा के ये business कर रहे हैं, उसको हम capital बोलते हैं। और ये कैपिटल एक तरह से बिजनेस को वापस करना पड़ता है जब अगर बिजनेस चले नहीं या कोई और प्रॉब्लम्स हो जाती है, बिजनेस बंद करना पड़े, तो ये पूरा पैसा ओनर्स वापस ले जाते हैं। तो ये बिजनेस को ओनर को वापस करना पड़ता है।
तो बिजनेस और जो ओनर है उन दोनों की अलग बुक्स ऑफ अकाउंट होती हैं। ओनर बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है, ओनर अपनी बुक्स अलग बनाएगा, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो कमिंग नाउ टू द नेक्स्ट विच इज द ड्राइंग्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन जो कैपिटल लेके आया, कभी कभी उसे बीच में पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो वो बिजनेस से कुछ पैसा अपने घर पे ले जाएगा, तो उस पैसे को हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। द ओनर withdraws money from the business and that money goes out of his capital and it is known as the drawings. In this case I am not saying that he is taking money from the sales or other things, I am just saying that from the capital, जो भी उसका capital contribution है, from that he is taking away some money, that is known as drawings. Now the next thing that we need to understand is, हम generally use करते हैं words assets. So assets हमारे क्या होते हैं? assets जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, इस पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरा asset है, यानी ये मुझे बेनिफिट देगा बहुत लंबे टाइम तक, मैं इससे बहुत सारी और क्लासेस पढ़ाने वाली हूँ, तो ये बोर्ड मेरे लिए एक asset हो गया जिसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म तक मिलेगा. So similarly whatever things give me return over a long period of time in the business are termed as assets for the business, and assets can be further classified into fixed and current assets. Fixed asset क्या है? जैसे ये पूरा रूम है, इस रूम में मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये एक फिक्स्ड असेट हो गया, ये मेरा रूम है तो ये फिक्स्ड असेट है, मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं बिजनेस में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए. और करंट असेट वो होता है जो हम थोड़े टाइम में हमें रिटर्न देता है और उसके बाद में वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे कि हमें किसी ने पैसे देने, हमने किसी को सेल्स करी, हमने उसको सामान बेचा, उसने हमें पैसा देना है, अभी उसने पैसा हमें दिया नहीं है, तो वो हमारे लिए एक डेटर बन गया जिसने हमें पैसा देना है, तो वो डेटर हमारे लिए करंट असेट में आएगा. जब वो डेटर हमें पैसा दे देगा तब हम उसको बोलेंगे ये करंट असेट है. डेटर हमारा करंट असेट है बिकॉज कुछ टाइम के बाद वो डेटर हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दैट बिकम्स अ करंट असेट. करंट असेट के एग्जांपल्स होते हैं स्टॉक. स्टॉक हमने रखा, उसको हमने बेच दिया, कुछ टाइम के बाद हम बेच देंगे, हमें मनी मिल गया, सो वो हमारा इन्वेंट्री या स्टॉक बन जाता है. सो फिक्स्ड असेट है जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग पीरियड तक मिलता है, जिसको हम जनरली रीसेल नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं, और हमारे जो करंट असेट्स हैं वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कैश इन सम टाइम, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ करंट असेट्स. सो मूविंग फॉरवर्ड नाउ, assets can also be classified into tangible and intangible assets. For example, ये बोर्ड है, ये आप देख सकते हो, ये रूम है, ये आप देख सकते हो कि ये आपको नजर आ रहा है. This is a tangible asset which you can see, feel. And intangible asset is something which you cannot see from your eyes, but it is still there. For example, goodwill of the business. अब suppose कुछ बिजनेस है, उसकी अपनी गुडविल है, रिलायंस कंपनी है, उसकी अपनी गुडविल है, तो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी एक गुडविल होगी. सो दैट गुडविल यू कैन नॉट सी बट यू कैन फील दैट इट इज देयर. इफ रिलायंस कंपनी गोज आउट एंड gives another product in the market, everyone knows that this is from Reliance. So this means that that company has that goodwill. So that goodwill people will just understand. They will not be able to see it, but it is still there. So those kind of assets are known as intangible assets. Copyrights, patents, all these are intangible, जिसको हम देख नहीं सकते but वो होते हैं. पार्टनरशिप में बिजनेस हो रहा है, एक नया पार्टनर आता है जो कि बहुत रिनाउंड, बहुत नोन पर्सन है, वो अपनी गुडविल बिजनेस में लाता है, तो वो उस गुडविल के पैसे चार्ज करता है, तो उस गुडविल को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं बिजनेस में, क्योंकि उसके आने से हमारे बिजनेस को फायदा होगा. तो गुडविल इज समथिंग which you cannot see but it is still there. It can be measured in monetary terms. Okay, now I hope you have understood what is assets, current assets, fixed assets, tangible, intangible assets. हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरभि अरोड़ा आज फिर आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11 की अकाउंट CBSE बोर्ड.
आज हम स्टार्टिंग जो हमारा इनिशियल सिलेबस का होता है विद क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, आज हम ये स्टडी करेंगे। हाउ आर द अकाउंट्स क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जो हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का और उसके अकाउंटिंग के रूल्स क्या होते हैं, दीज विल बी स्टडीड टुडे, ऑल द अकाउंटिंग रूल्स एंड द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमारे तीन तरह के अकाउंट्स बनते हैं। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे असेट्स के अकाउंट्स होते हैं, लायबिलिटीज के अकाउंट्स होते हैं, ये सब हम रियल अकाउंट बोलते हैं। बैंक, कैश, फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, लैंड, ये सारे हमारे रियल अकाउंट्स हो जाते हैं। तो रियल अकाउंट्स का रूल होता है, इसका जो रूल है, पहला रूल, डेबिट what comes in and credit what goes out। अब हमारा यहाँ पे जैसे हमने फर्नीचर खरीदा, डेबिट को हम डीआर से डिनोट कर रहे हैं, क्रेडिट को हम सीआर से डिनोट कर रहे हैं। हमने फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर फॉर 10,000। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या दो चीज इन्वॉल्व हुई, एक फर्नीचर और दूसरा हमारा कैश। सो अब हमारे पास क्या हुआ, फर्नीचर आया और कैश गया। अब हम देखेंगे कैश और फर्नीचर किस तरह के अकाउंट्स हैं। कैश जो है हमारा रियल अकाउंट है और फर्नीचर भी हमारा रियल अकाउंट है। तो इसको अब हम बोलेंगे फर्नीचर हमारे पास आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया हमारे पास, फर्नीचर। तो हम इस ट्रांजैक्शन में कैसे करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या गया, जो कब हुआ, कैश। तो हम इसको लिख देंगे टू कैश। तो रियल अकाउंट में जो चीज आती है उसको डेबिट करेंगे, जो चीज जा रही है बिजनेस से उसको हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दीज आर द रूल्स फॉर रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स आर all the assets account, all the liabilities account, bank, cash and all that. So those become our real accounts. Second classification जो है हमारी अकाउंट्स की, वो होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं हमारे, जैसे कि हमारे एक्सपेंसेस हो गए, या हमारे लॉसेस हो गए, या हमारे गेन्स हो गए, या हमारी इनकम्स हो गई। ये हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। अब रियल और नॉमिनल अकाउंट्स में एक मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि रियल अकाउंट्स ईयर एंड के बाद भी रहते हैं अकाउंट बुक्स में, बट नॉमिनल अकाउंट्स हम साल के बाद उसको क्लोज कर देते हैं, तो उनका कोई बैलेंस अगले साल में नहीं जाता। बट रियल अकाउंट्स का बैलेंस अगले साल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और रियल अकाउंट्स बैलेंस शीट में जाते हैं नॉर्मली। नॉमिनल अकाउंट्स हमारे जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो ये बेसिक छोटा छोटा चीजें आपको याद रखनी है कि जो नॉमिनल अकाउंट है हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेस हो रहे हैं हमें बिजनेस को, और गेन्स या इनकम्स होती हैं, ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। तो अब इसका रूल क्या है, इस एक्सपेंस लॉस गेन इनकम्स का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जब डेबिट कर दिया एक्सपेंस और लॉस को, तो क्या गेन्स और इनकम्स को क्या होगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो हमारी इनकम्स हैं वो हमारे लिए क्रेडिट होंगी, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमारे डेबिट होते हैं। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे आगे, तो आप देखोगे कि डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट की साइड में हम इनकम लिखते हैं। तो ये हमारे नॉमिनल अकाउंट का रूल हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो ये हमारे नॉमिनल अकाउंट्स वो हैं जिनका बैलेंस ईयर एंड के बाद नहीं बचेगा, साल के बाद अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। रियल अकाउंट्स में बैलेंस हो भी सकता है, रियल अकाउंट में बैलेंस नहीं भी हो सकता है। और हमारा तीसरे तरह का जो अकाउंट होता है वो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स यानी कि ये हमारे कौन से पर्सनल अकाउंट्स हो गए, हमने हमारा बैंक अकाउंट खोला, हमने एसबीआई में बैंक खोल रखा है, पीएनबी में खोल रखा है, तो ये क्या है, हमारे पर्सनल अकाउंट्स हैं। तो सारे बैंक अकाउंट्स हमारे पर्सनल अकाउंट है। हमने क्रेडिटर्स को पैसा देना है, क्रेडिटर्स कौन है, इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं वो, तो वो भी हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। डेटर्स हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, तो वो भी इंडिविजुअल्स हैं जिनसे हमने पैसा
पर्सनल अकाउंट के अंडर में आएंगे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? सिंपल, डेबिट द रिसीवर and credit the giver. The person who is receiving we have to debit and the person who is paying we have to credit it. जिसको मिल रहा है उसको डेबिट कर दो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो ये 3 मेजर रूल्स आपके क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में जिसको आपको हमेशा याद रखना है। अब पर्सनल अकाउंट्स का भी बैलेंस ईयर एंड पे हो सकता है। नॉमिनल अकाउंट्स का बैलेंस ईयर एंड पे हम क्लोज कर देते हैं, इन अकाउंट्स को बंद कर देते हैं, बट रियल और पर्सनल अकाउंट्स हमारे ईयर एंड पे बैलेंस शीट में जाते हैं। ये चीज आप स्पेसिफिकली याद रखिए कि रियल और पर्सनल अकाउंट्स ही सिर्फ बैलेंस शीट में जाते हैं। सारे नॉमिनल अकाउंट्स हमारे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके क्लोज हो जाते हैं और रियल अकाउंट्स हमारी बैलेंस शीट में जाएंगे और पर्सनल अकाउंट्स भी हमारी बैलेंस शीट में जाएंगे। तो ये आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि नॉमिनल अकाउंट सारे पीएल अकाउंट में और पर्सनल और रियल अकाउंट सिर्फ बैलेंस शीट में। तो जब हम आगे जाके फाइनल अकाउंट्स करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब जब भी आप कोई जर्नल ट्रांजैक्शन देखेंगे जिसको आपको जर्नलाइज करना होगा, जर्नल में लिखना होगा, तो सबसे पहले आपको क्लासिफाई करने हैं कौन सी 2 चीजें, क्योंकि हम डबल एंट्री बुक कीपिंग कर रहे हैं तो कोई 2 चीजें उस पूरे ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होंगी जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। जब आपने उन 2 को आइडेंटिफाई कर लिया, कई बार 3 भी हो सकती है, जैसे हमने पिछले एक सेशन में करा था जिसमें हमने डिस्काउंट भी ले लिया था, जहाँ पे हमने किसी को पे करा था और हमने उसे कम पे करा तो हमारा डिस्काउंट भी इन्वॉल्व हो गया। तो वहाँ पे हमारे तीन तरह के अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। बट हमारा जो टोटल होगा दोनों साइड का डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए एट ऑल टाइम्स, बिकॉज वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो जब ये हमारा डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया तो हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग हो गया। इसी तरह जब हम इन तीनों बैलेंस शीट की दोनों साइड्स होती हैं ये भी इक्वल होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम अगर ज्यादा है एक्सपेंस से तो हमारी प्रॉफिट होगा, और अगर इनकम कम है एक्सपेंस से तो हमको लॉस हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट सेशंस में हम इसको और थोड़ा इलाबोरेट करेंगे। और जब आप जर्नल एंट्री कर रहे हो, जैसे मैंने बताया आपको, आपने ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं, अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। जब आपने 2 या 3 अकाउंट्स उस ट्रांजैक्शन से आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद आपको सोचना है कि किस तरह का अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, या ये पर्सनल अकाउंट है, और उसके लिए फिर वो वाला रूल अप्लाई होगा जो उस पर एप्लीकेबल होता है। अकाउंट्स में सारी तरह के ट्रांजैक्शन जो अकाउंट्स होते हैं, इन्हीं 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। या तो हम इसको, ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, मॉडर्न मेथड में हम उसको असेट लायबिलिटी या इनकम गेन या कैपिटल असेट उस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये ही बेसिकली हम फॉलो करते हैं, और इसके थ्रू ही हम अपने ट्रांजैक्शंस को देखते हैं कि किस चीज को हमें डेबिट करना है या हमें किस चीज को क्रेडिट करना है। So I hope you all like the session, students, and we look forward to seeing your comments, suggestions, and if you want some other lessons from us, do let us know in the comments. We really look forward to serving you. Students, आपको हमारा सेशन कैसा लगा इसके बारे में आप हमें बताइए, और अपने कमेंट्स, सजेशंस, फीडबैक देते रहिए, और ये भी बताइए हमें कि और क्या क्या आप इसमें पढ़ना चाहेंगे, तो हम फिर आगे वाले सेशंस में वो सारी चीजें भी इंक्लूड कर देंगे। दिस इज सुरभि अरोड़ा, थैंक यू।